टॉपिक अंडरस्टैंडिंग र्यूमेटिक फीवर यूजी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्सेट एस्पिरेंट्स के लिए भी। तो बी रेडी फॉर क्लिनिकल क्लैरिटी प्लस एग्जाम ओरिएंटेड इंसाइट्स। उड़ान सीरीज का विजन है कि हर नर्सिंग लर्नर को नॉलेज के विंग्स मिले ताकि वो सिर्फ एग्जाम रेडी नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और फ्यूचर रेडी हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन सके। उड़ान का मकसद है लर्निंग को एक्सेसिबल, फ्रेंडली और इंस्पायरिंग बनाना ताकि हर स्टूडेंट अपनी जर्नी को अपलिफ्ट करे और नए नॉलेज के साथ आगे बढ़े। NNL1 एक पायनियरिंग नर्सिंग एडटेक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च हुआ था विद वन मिशन, हाई क्वालिटी, एक्सेसिबल, एनी टाइम एनीवेयर नर्सिंग एजुकेशन। 2020 से लेकर आज तक NNL1 ने यूजी से लेकर MSc नर्सिंग, एनक्लेक्स और स्पेशली नॉर्सेट तक हर लेवल के लर्नर्स के लिए एक कंप्लीट लर्निंग इकोसिस्टम क्रिएट किया है, अलाइन विद द लेटेस्ट INC सिलेबस built by India's top medical and nursing experts. ऑनलाइन के साथ साथ अब NNL1 ऑफलाइन लर्निंग में भी लीड कर रहा है with centers like NNL Academy in Noida and NNL Edu Hub at Jaipur, offering CBT labs, simulation-based clinical training, in-person sessions, certifications, and doubt clearing programs. नर्सिंग नेक्स्ट लाइव ने अब तक 7500 प्लस नर्सिंग एस्पिरेंट्स को हेल्प किया है नॉर्सेट, ESIC, RRB एंड स्टेट PSC जैसे नेशनल लेवल एग्जाम में सक्सेस अचीव करने में। And why we are the students' first choice, and there is a reason behind it because NNL1 students के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स, हाई क्वालिटी कंटेंट एंड कंटिन्यूअसली अपडेटेड स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिलता है। स्ट्रक्चर्ड टेस्ट, गाइडेड स्टडी प्लान्स एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को रियल एग्जाम रेडी बनाते हैं। 7500 plus NORCET selection, trusted by toppers approach and strong mentorship, NNL1 को इंडिया का मोस्ट रिलायबल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड नर्सिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाता है। चलिए चलते हैं आज की आइटिनरी की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पहले वेलकम सेशन विद इंट्रोडक्शन ऑफ आवर स्पीकर्स and then we will be moving towards the understanding the rheumatic fever, which is our topic for today. We will be hearing from the NORCET and university toppers with a short plan video and a Q&A round and with closing remarks with some special rewards. तो आज के वेबिनार में जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे उन पार्टिसिपेंट्स के लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड भी है जो कि आप सबको मिल सकता है, द मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3। तो डोंट मिस द चांस एंड स्टे विद अस टिल द एंड। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स। लेट्स मीट देम। We have with us Ms. Chitra Pandey, Academic Head UG, Mastermind UG Faculty. Ms. Chitra Pandey is dedicated professional with specialized expertise in child health nursing. She brings extensive experience in teaching child health nursing and has a strong background in research. She has also served as a research fellow, contributing significantly to the advancement of pediatric nursing knowledge. Her knowledge and clinical experience plays a vital role in shaping a comprehensive student-centered curriculum that reflect current healthcare needs and practices. Her contribution aims to foster both academic excellence and compassionate care among future nursing professionals. We welcome you, ma'am, today. Next, we have with us Miss Anvesha Mondal, NORCET 9 rank 14, and she has done her graduation from Neotia Academy of Nursing, Kolkata, in the year 2022 and has 2 years of teaching experience. She is currently allotted AIMS Kalyani in NORCET 9. We welcome you, Miss Anvesha. Next, we have with us Miss Palakpreet Kaur, University topper, GTB College of Nursing, DFUHS 2025. We welcome you, Miss Palak. So before we begin our webinar, there are certain guidelines जो कि कुछ rules, quick rules है। Speakers अपना content सब यहाँ one by one present करेंगे। आप सब अभी अपने questions Q&A box में session के दौरान लिख सकते हैं और सारे questions को हम end के Q&A round में लेंगे। और प्लीज सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि सेशन के एंड में आपको कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि आपका वेट कर रहे हैं। So let's begin our session. I would request Ms. Chitra Pandey ma'am to share her slides so that we can move forward with the session. I will be stopping my screen. Ms. Anvesha, can you please switch on your video so that the audience can see and connect with you? Hi Anvesha, can you give your brief introduction to everyone and then we can ask you further questions? Yes. So, hello everyone. I am Anvesha Mondal, All India rank 14 in NORCET 9 mains. Currently, I am not working. I have prepared for NORCET 9 for the last 1 year. So, इस बार मेंस में मैंने 14 रैंक किया है और एम्स कल्याणी अलॉटेड हुआ है।
Great, Anvesha. So, Anvesha, today's topic that we have here today is understanding rheumatic fever. तो आप हमें बताना चाहोगे कि आप अंडरस्टैंडिंग rheumatic fever के लिए अपने नॉसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी की थी, एंड लाइक व्हाट स्पेसिफिक पॉइंट्स वी नीड टू फोकस ऑन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नॉसेट, एंड एनएनएल ने आपको कैसे हेल्प किया? आप इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। रियूमेटिक फीवर एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको देखने जो एग्जाम अपियर करने वाले हैं वो उनको देखने को मिलेगा कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इस बार के प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि कॉजिटिव एजेंट ऑफ रियूमेटिक फीवर, ऐसा ग्रुप बी बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ऐसा। और मेंस में भी क्वेश्चंस आए थे जो उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है मेजर और माइनर, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जब प्रिपेयर किया था मेडिसिन के एस्पेक्ट से रियूमेटिक फीवर, तो वहां से तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स थे और जो मेनोमिक्स थे वो तो बहुत हेल्प किया था। जैसे कि रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया, उसमें से बहुत क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, 8 में भी मिले थे और 9 में भी मिले हैं। और 9 में मेंस में भी आए थे, प्रीलिम्स में भी आए थे क्वेश्चंस। तो ऐसे करके वो जो पॉइंट मेनोमिक्स उन वो लोग पढ़ाते हैं, उनसे तो बहुत ही हेल्प होता है, क्योंकि वो एग्जाम के टाइम पे एकदम से आ जाते हैं दिमाग में, तो आंसर करने में भी बहुत हेल्प होती है। ग्रेट, अन्वेषा। और कोई आपको लगता है कि अगर कोई नॉसेट के लिए रूमेटिक फीवर या सिमिलर लाइंस में अगर मतलब पढ़ना चाहता है तो उसको क्या चीज को पहले फोकस करना चाहिए, एंड देन हाउ दे शुड मूव ऑन फर्दर फॉर होल्ड, लाइक अगर एमसीक्यूज आते हैं या उसके अकॉर्डिंग हाँ, देखना चाहता है तो उसके लिए। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें से ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पॉइंट्स ही आएंगे। इसमें से ऐसे क्वेश्चंस वो डायरेक्ट तो नहीं देते कि मेंस में इस बारी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट नहीं थे। ऐसे करके वो उन्होंने सारे सिम्टम्स आपको दे देंगे, फिर वो पूछेंगे इस सिम्टम्स के जो डिजीज होता है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो ऐसे जो यहाँ पे मैंने पढ़ा था, साबिना मैम ने भी रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया बहुत अच्छे से हमको वो मेनोमिक से पढ़ाया था, ताकि वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो उनसे क्या हेल्प होती है, तो एक बार में क्वेश्चंस पढ़ के वो समझ में आ जाता है ये पूछना क्या चाहते हैं। तो हम वैसे अकॉर्डिंग द क्वेश्चंस हम उनको ऐसा आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, फिर उसके जो जो सिम्टम्स है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चंस ये ऐसे पूछते हैं कि हिस्ट्री लेकर आए हैं फेरिंजाइटिस और सोर थ्रोट करके, फिर इनको सडनली ऐसे हार्ट मरमर कुछ ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, तो फिर क्या हो सकता है डिजीज और क्या हो सकता है पॉजिटिव एजेंट। तो ऐसे करके पॉइंट वाइज आप अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लोगे, तो एज अ होल टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम के टाइम में आंसर करने के लिए भी बहुत आसानी होगी। ग्रेट, अन्वेषा। आई थिंक आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएट कर रहे हो कि जब भी हमें फोकस करना होता है तो हमें हाई पॉइंट्स पे फोकस करना होता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नौसेट में, तो हम इसमें किस तरह से जो हमारी हम मिस्टेक्स करते हैं, या फिर कोई एमसीक्यू में ऐसा कोई पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आप कुछ मतलब हमें बताना चाहेंगे कि कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं? कभी कभी तो सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं जो एंडोकार्डाइटिस और र्यूमेटिक फीवर वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर मिल जाता है। तो आपको स्पेसिफिक एज अ होल जब भी कोई टॉपिक पढ़े ऐसा कि र्यूमेटिक फीवर, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से पहले उसको एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। पहले जो जिन जिन भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, तो उनसे अच्छे से एक बार समझ लो पूरा। फिर उसके बाद आप उस चैप्टर की एमसीक्यू भी कर लो, तो आपको आने लगेंगे उस टॉपिक से पर्टिकुलर कौन कौन से एमसीक्यू आते हैं। तो फिर आप इजीली उन एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे दो चार ऐसे एज अ होल 20 और 30 एमसीक्यू एक टॉपिक से करने से ये होगा कि आप नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल कर सकोगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चंस देखने लगोगे सिमिलर पैटर्न के, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा और नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम हो जाएगा। और मैनेजमेंट भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो मैनेजमेंट बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, तो उसका पहले पॉजिटिव एजेंट पढ़ना चाहिए, फिर सिम्टम्स पढ़ना चाहिए, फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, फिर जाके मैनेजमेंट। वो थोड़ा ऐसे पॉइंट वाइज आप याद कर लोगे, तो आपके लिए कोई भी टॉपिक बहुत इजीली याद हो जाएगा और आप एमसीक्यू में भी बहुत इफेक्टिवली उसका आउटकम निकाल सकते हो।
थैंक यू अन्वेषा। आई थिंक आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी कवर किए हैं फ्रॉम नॉसेट पर्सपेक्टिव, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी हम चित्रा मैम के प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे, एंड अगर किसी को भी और भी क्वेश्चंस पूछने हैं अन्वेषा से तो फिर दे कैन पुट दोज क्वेश्चंस इन द Q&A बॉक्स। सो थैंक Yes. यू अन्वेषा। आई थिंक Thank you. वी विल नाउ मूव टू चित्रा मैम्स प्रेजेंटेशन। Okay, okay. So, ma'am, you'll be taking the session next, and I'll be sharing your PPT from here. सो हेयर आज के सेशन में हम बात करने वाले रूमेटिक फीवर के बारे में। दो डेफिनेटली एक साइंटिफिक सेशन है और यहाँ पे हम एक साइंटिफिक डिस्कशन करना है, एंड आई अज्यूमिंग गेसिंग कि रूमेटिक फीवर ऐसा टॉपिक है शायद आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, राइट? या किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपको टॉपिक को दो अप्रोच लेके पढ़ना पड़ता है। पहली अप्रोच होती है जिसमें हम कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं कि मैंने टॉपिक अगर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मेरी प्रेपरेशन, मेरी कंसंट्रेशन, मेरा जो भी पढ़ाई का कंटेंट है वो इस तरह मुझे पढ़ना है कि मुझे उसके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली अगर नाम में सुनो रोमैटिक फीवर, सो दीज आर द टिप्स, दीज आर द पॉइंटर्स शुड डायरेक्टली कम इन माय माइंड। जहां तक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, चाहे वो नॉर्सेट का एग्जाम हो, वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना है। कंसेप्ट क्लियर है बट कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि कॉम्पिटेटिव पूछते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी वन ऑफ द शी told you that revised area is this is one of the biggest important crucial aspect in rheumatic fever, और majority questions आपके revised Jones criteria से आते हैं। तो क्राइटेरिया हो गया, सिम्टम हो गए, so इन सारी चीजों पे यू हैव टू focus. So the in today's session I won't be able to write anything right now just due to some issues. I don't have internet connectivity with me right now, so but still let me take you through the entire rheumatic fever. What do we know about rheumatic fever, and let's try to explore rheumatic fever. So as far as rheumatic fever is concerned, Arushi, can you just swipe the slide? So as far as rheumatic fever is concerned, I hope everybody knows how it happens. Basically, अगर आपसे कोई कहे कि rheumatic fever क्या होता है तो मुझे इतना पता होना चाहिए पहली चीज कि rheumatic fever एक ऐसा डिसऑर्डर है पीडियाट्रिक्स में जो 6 से 15 साल के बच्चों में काफी कॉमन देखने को मिलता है। कई जगह पे इसका एवरेज रेंज इज बिटवीन 5 to 15 ईयर्स और 6 to 15 ईयर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर है, दैट इज एक्सपोजर टू ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द फेरिंक्स। तो यानी कि जब मेरे पास कोई बच्चा इस कंप्लेन से आता है, उनको फीवर है या जनरल सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं रोमैटिक फीवर के, तो हम वहां पर सबसे पहले हिस्ट्री पूछते हैं, क्या बच्चे को पास्ट में फेरेंजाइटिस हुआ था क्या? तो हम वहां पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे का एक्सपोजर स्ट्रेप थ्रोट हुआ था बच्चे को। तो ये जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री होती है ये हमें थोड़ा सा एक डायग्नोसिस की तरफ सस्पिशन लेकर जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये एक हमारी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, सो वी कॉल इट एज एन ऑटो इम्यून कंडीशन। नाउ हाउ डज इट हैपन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, लेट मी टेल यू। तो जब रिमेटिक फीवर में बेसिकली बेटा क्या होता है, आई होप एवरीबडी नोज द कॉजेटिव एजेंट इज ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, है ना? तो जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, इफ एवरीबडी नोज द माइक्रोबायोलॉजी, आपने पहले पढ़ी होगी, कोकाई हमेशा स्फेरिकल या ओवल इन शेप होते हैं, बैक्टीरिया स्फेरिकल या ओवल इन शेप होता है। तो हमारे जो ये स्ट्रेप्टोकोकल, ये जो हमारा ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है या कोकाई है, इसके सरफेस पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मैं आपको बेसिक फिजियोलॉजी बता रही हूँ कि होता कैसे इन्फेक्शन, इसको हम ऑटो इम्यून कंडीशन क्यों बोल रहे हैं या फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। बेसिकली इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू अकर करती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कोकाई होता है जो स्फेरिकल या ओवल इन शेप होता है, उसके सरफेस पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम प्रोटीन। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर एम प्रोटीन, ये जो एम प्रोटीन होता है एक हमारे बॉडी में ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे हार्ट टिश्यूज में, हमारे किडनीज में। इन मेजॉरिटी ऑफ आवर बॉडीज there is one molecule present that is called as NAG, N-acetyl glucosamine। जो ये NAG मॉलिक्यूल होता है ये नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है इसका जो
सरफेस पे एम प्रोटीन है, ये रिजेंबल करता है एनर्जी से, तो यानी कि ये एनर्जी को मिमिक करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके जो बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेप्टोकोका है, उसका एम प्रोटीन जो उसके सरफेस पे है, और हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल है एनर्जी, ये दोनों आपस में काफी सिमिलर होते हैं, रिजेंबल करते हैं, तो यानी कि एम प्रोटीन उसको मिमिक करता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, कोई फॉरेन एंटीजन आया, व्हाट विल हैपन, मेरा इम्यून सिस्टम फाइट करेगा उससे लड़ने के लिए, राइट? तो जैसे ही मेरा इम्यून सिस्टम फाइट करेगा तो बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आइडियली एंटीबॉडीज एम प्रोटीन के अगेंस्ट बननी चाहिए, क्योंकि वो हमारा फॉरेन एंटीजन है। हाउएवर, क्योंकि वो हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को, वो हमारा जो एम प्रोटीन है वो रिजेंबल कर रहा है, तो हमारी बॉडी खुद की बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। हाउ दिस इज हाउ इट बिकम्स अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 2। Hi, you are unable to see my video? Ma'am, there's something in between that beach mein the video is getting stopped. So if the I network told you is there is some yes, there is some internet connectivity issue at my place. That's why I'm unable to properly, execute this particular presentation. So, okay, so I think we'll continue with this only, but just in between, just okay, in case this happens, so I'll connect with you accordingly. sure, sure, sure. So still I am not visible, right? Now you're visible. Now I am visible. Fine. So I'm really sorry, my dear students. कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से मैं अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, आप फेस भी नहीं देख पा रहे हैं। सो रियली रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर द इनकन्वीनियंसेस। तो अभी तक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया, हम क्या पढ़ रहे थे रूमेटिक फीवर के बारे में। आरुषि, यू कैन स्विच चेंज द स्लाइड नाउ। तो जो भी मैंने को पूरा कंसेप्ट बताया, बेसिकली क्या है, मैकेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मिमिक्री, या फिर क्रॉस रिएक्टिविटी इसको कहा जाता है। तो इसलिए हम इसको एक इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन या डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट जो ये हमारा एंटीबॉडीज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, एंड अल्टीमेटली इट विल बी अफेक्टिंग जहां जहां पर हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल होगा। एंड दैट्स वाई आपको बहुत मल्टीपल एरियाज में, मल्टीपल जगह पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, दिस इज शोइंग यू फारेंजाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन आपको दिखा रहा है। तो जब भी कोई बच्चा इस हमारे साथ पास में कुछ कंप्लेंट्स लेकर आए, रिस्पेक्टिव टू जो हमें सस्पेक्ट करे कि रूमेटिक फीवर है, हिस्ट्री लेना काफी जरूरी है कि प्रीवियसली बच्चे को कोई स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि एंटीबॉडीज जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकल सेल वॉल प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है, अगेन इट कॉजेस द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 2। ओके, यू कैन चेंज द स्लाइड, आरुषि। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है किस वजह से बच्चे को फारेंजाइटिस हो सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस की वजह से हो सकता है, ओवर क्राउडेड हाउस होल्ड में अगर कोई रहता है तो वहां पर ज्यादा दे आर मोर प्रोन टू गेट स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ कम्स इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर हमारे पास में आता है इटियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत बच्चों को बीमारी हो सकती है। तो 5 से 50% कार्डिक पेशेंट्स में इंडियन हॉस्पिटल्स बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है। एंड आफ्टर द स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन, जो रूमेटिक फीवर का इंसिडेंस है, इट इज 0.3% इन द जनरल पॉपुलेशन एंड 1 to 3% इन प्रेजेंस ऑफ एपिडेमिक्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल स्टोर थ्रोट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को, अगर सपोज करो अगर 100 बच्चों को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या सोर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो सबको रूमेटिक फीवर डेवलप होगा। इट इज नॉट नेसेसरी, ओनली अ फ्यू परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन यूजुअली डेवलप द डिसऑर्डर। ओके, नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाला ये है कि आपने एक नाम सुना होगा रूमेटिक फीवर, एंड फर्दर रूमेटिक हार्ट डिजीज है ना, RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो जब मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं रूमेटिक फीवर के और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, जहां हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज जो होती है बेसिकली वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड होती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो जो एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज हमारी है, उस समय क्या होता है, उस दौरान बेसिकली वहां पर माइट्रल रिगर्जिटेशन ज्यादातर देखने को मिलती है, जो माइट्रल वाल्व होती है वो रिगर्जिटेट करती है। और जब ये क्रॉनिक बन जाता है, मल्टीपल एपिसोड्स होकर जब ये क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज बन जाता है, तो अल्टीमेटली माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस वहां पर हो जाता है, ठीक है। और सबसे कॉमन जो हार्ट वाल्व
इन्वॉल्व होती है या अफेक्टेड होती है इस रूमेटिक फीवर इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से, दैट इज द माइट्रल वाल्व। उसके बाद जो सब मोस्ट कॉमन है दैट आयोटिक वाल्व, एंड सबसे लीस्ट कॉमन इज द पल्मोनिक वाल्व। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक आउटलुक क्यों दिया रूमेटिक हार्ट डिजीज का, क्योंकि फर्दर अगर मल्टीपल बार्स multiple times it is happening the rheumatic fever, ultimately it is going to develop into rheumatic heart disease। okay, तो यानी कि हार्ट जो है वो काफी ज्यादा बड़े लेवल पर अफेक्ट होता है। तो यहीं पर एज यू कैन सी mitral valve disease and chorea is a more common symptom in girls, and whereas aortic valve involvement is more often seen in boys। okay, तो ये जो इसकी प्रीडोमिनेंस है वो डिपेंड करती है किस तरह का डिफेक्ट हम बॉयज में हो रहा है गर्ल्स में हो रहा है। ओके, next slide Arushi please, can you swipe the slide please Arushi? So when we talk about the symptom, okay, so here we have an image. I cannot point it out the particular part in the image as you can see। तो आपको यहाँ पर एक ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन दिख रही होगी, पर्टिकुलर पिंक पोर्शन, must be able to see the granular formulation। this is the basically an image of heart biopsy। ये हार्ट बायोप्सी दिखा रखी है, तो यहाँ पे ना ग्रैनुलर फॉर्म्स, यस आरुषि इफ यू कैन लोकेट द ग्रैनुलोमास फॉर्मेशन। तो यहाँ बेसिकली ये जो ग्रैनुलोमा आपको, यस दिस पर्टिकुलर इमेज एज यू आर एबल टू सी, इसके अंदर मल्टीपल सेल्स आर देयर ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, मल्टीपल सेल्स आर देयर, लाइक we do have lymphocytes, we do have different kinds of cells present here। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपको शो कर रहा है एशकॉफ बॉडीज। ओके, दीज आर द एशकॉफ बॉडीज यूजुअली सीन इन एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो हार्ट इन्वॉल्वमेंट जब हो जाती है तो एशकॉफ बॉडीज जो होती है कैन बी सीन इन रूमेटिक फीवर ऑल्सो, बट प्रीडोमिनेटली इट इज मोर सीन इन एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन की वजह से मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द हार्ट टिश्यू विच इज शोइंग यू द एश ऑफ बॉडीज। तो एश ऑफ बॉडीज भी सिग्निफिकेंट फीचर है विच इज यूजुअली बीन सीन इन रूमेटिक फीवर एंड प्रीडोमिनेंटली इन एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज। यू कैन स्वाइप अप दिस स्लाइड आरुषि। ओके, नाउ हाउ डू वी डायग्नोज दिस पर्टिकुलर कंडीशन? तो डायग्नोसिस एक तो लक्षण के बेस पे होगा, और हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया है हम फर्दर आगे पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीजें आते हैं, एंड with the help of mnemonic only we are going to learn about that। so यहाँ basically revised Jones criteria में two major, या तो two major symptom या two major findings होनी चाहिए as per revised Jones criteria, या फिर one major and two minor होना चाहिए along with evidence of streptococcal infection should be able to confirm the diagnosis for the children who are suspected of having rheumatic fever। तो यहाँ पर आइए पढ़ते हैं हमारे symptoms क्या हैं। so in the next slide you will be able to see what all symptoms can be seen। तो symptoms को डिवाइड कर दिया गया है माइनर क्राइटेरिया एंड मेजर क्राइटेरिया में। तो माइनर क्राइटेरिया में आपको बच्चे में फीवर देखने को मिल सकता है, स्पेसिफिक कितना डिग्री फीवर, 101 से लेके 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38.2 टू 38.9 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अथ्राल्जिया, जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, प्रीवियस रूमेटिक फीवर हिस्ट्री देखने को मिल सकती है, और हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप थ्रो देखने को मिल सकता है। देन अगर आप लैबोरेटरी फाइंडिंग्स करेंगे तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन द WBC काउंट, एलिवेटेड एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट और सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब प्रोलॉन्ग PR इंटरवल क्यों देखने को मिलेगा, इसका भी एक रीजन है, आई विल टेल यू। इफ एनीबडी नोज रेज योर हैंड, विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, चेंज द स्लाइड प्लीज आरुषि। सो इसके अलावा माइनर क्राइटेरिया हमने पढ़े, अब है सपोर्टिंग एविडेंस क्या होता है, कौन सी चीजें को हम सपोर्टिंग एविडेंस मानते हैं, कौन चीज हमें बताएगा कि सपोर्टिंग एविडेंस जो हमें शो कर रहे हैं GAS इन्फेक्शन का। तो उसमें या तो पॉजिटिव थ्रोट कल्चर में प्रेजेंट होना चाहिए कॉकाई, पॉजिटिव ASO टाइटर। व्हाट इज दिस ASO टाइटर? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहा जाता है स्ट्रेप्सोलाइसिन। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट कितनी एंटीबॉडीज बन रही हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं हमारे ASO टाइटर टेस्ट में। ठीक है, देन वी हैव द स्कारलेट फीवर, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्कारलेट फीवर इन पास्ट डेफिनेटली, और देयर इज स्कारलेट फीवर सपोर्टिंग एविडेंस, तो वहां पर भी हम इसको कंफर्मेशन मानते हैं कि रूमेटिक फीवर हो सकता है। स्कारलेट फीवर का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, अगेन इट इज ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई।
क्लियर है? नेक्स्ट इन स्लाइड यू विल बी एबल टू सी द मेजर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया में हमारे कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आती हैं, लाइक वी हैव कार्डाइटिस, एंड कार्डाइटिस में सबसे कॉमन वाला होता है पैन कार्डाइटिस, ठीक है। देन वी हैव पॉलीआर्थराइटिस एंड और यू कैन कॉल इट एज एरिथमा मार्जिनेटम। देन वी हैव सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। तो जब हमारे ये जो अगर आप बात करेंगे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स की, आई विल शो यू द इमेजेस आल्सो, हाउ डज इट लुक लाइक, हाउ डज एरिथमा मार्जिनेटम लुक लाइक, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन कार्डाइटिस। तो सबसे पहले अगर आप कार्डाइटिस की बात करेंगे तो कार्डाइटिस में बेसिकली क्या होता है, पैन कार्डाइटिस, सारे हार्ट की लेयर इन्वॉल्व होती है। सिग्निफिकेंट फीचर जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ हमें मर्मर्स ऑस्कल्टेशन में जानने को मिलती है, दैट्स कॉल्ड कैरी कुम मर्मर्स। हैव यू हर्ड ऑफ दैट नेम, एनीबडी? हैव यू हर्ड ऑफ दैट नेम, कैरी कुम murmurs? Such I can spell it out for you. So it's CARRYCOOMB. Caricum murmurs are usually heard on auscultation when we are talking about the carditis. Okay. So have you heard about it? तो बेसिकली ये कैरिकूम मर्मर क्यों सुनाई देती है, क्योंकि जो माइट्रल वाल्व है हार्ट की वो इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, थिकेंड हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है, विच इज लीडिंग टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेसिफिक मर्मर सीन इन कार्डाइटिस। ओके। इसके अलावा हमारा आता है आर्थराइटिस, तो इसको हम पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। जब मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। जब सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होगा तो आप उसको मोनोआर्थराइटिस कहेंगे। तो यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस बेसिकली हमें कहाँ का देखने को मिलता है, इट इज यूजुअली बीन सीन इन नीज पर्टिकुलर एरिया, एंकल्स और एल्बोज, ठीक है, लार्ज जॉइंट्स में हमें देखने को मिलता है। एंड अरिथमा मार्जिनेटम बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ सिन कंडीशन व्हिच यू विल बी एबल टू सी। मेजर जो एरिया होता है वो ट्रंक एरिया में दिखाई देता है, फेस और ट्रंक एरिया ज्यादा इसकी प्रीडोमिनेंस होती है। एंड पिंक कलर के ये हमारे particular pigmentation होती है, which is usually seen in case of rheumatic fever. Okay, I'll show you the pigmentation right now in the next slide. It is there. Then we have subcutaneous nodules. So हमारे subcutaneous nodules जो है वो bony prominences पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पेनलेस फर्म नोड्यूल्स होते हैं, पेनलेस होते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, नीड टू रिमेंबर, पेनलेस नोड्यूल्स होते हैं और बोनी प्रोमिनेंसेस पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो उसके बाद लास्ट हमारा एक सिग्निफिकेंट फीचर है ऑफ मेजर क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड सिडेनहैम्स कोरिया। कैन यू स्वाइप द स्लाइड आरुषि प्लीज? That's called Sydenham's chorea. So as you can see here, यहाँ पर आपको एक बच्चे दिख रहे हैं, 3 बच्चे जिनकी different posture is quite different, right? तो basically ये क्या है, जर्किंग मूवमेंट्स यहाँ पर शो हो रहा है, जर्किंग मूवमेंट्स दिखाई देती हैं, ठीक है, फेस हैंड्स फीट की जर्किंग मूवमेंट्स दिखाई देती हैं, दैट बेसिकली व्हाट हैपेंस इन सिडेनहैम कोरिया। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिल सकती हैं। बच्चे को एंजाइटी हो सकती है, या फिर इनअप्रोप्रिएट लाफिंग, inappropriately a child is crying, a child can show agitation, anxiety, such kind of things also can be seen in case of Sydenham's chorea, although this is a self limiting condition. self limiting है, हमें यहाँ पे पेरेंट्स को बस एजुकेट करना होता है कि कैसे इसको हैंडल करें, बच्चा जब यहाँ हो जाए ट्रिगर ना हो जाए, और अगर हो भी रही है तो बच्चे को कैसे मैनेज करना है। दिस इज वेरी मच क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज nursing management is concerned. Okay, so these are certain types of major criteria what we have studied. Now let's talk about क्या वो 2 मेजर, क्या वो 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरिया थे जिनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को रूमेटिक फीवर है या नहीं है। तो आपके जो रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया है लो रिस्क एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन में डिफर करता है। सो मेजर क्राइटेरिया में लो रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं आपके कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथमा मार्जिनेटम। एंड मॉडरेट टू हाई रिस्क पॉपुलेशन में अगेन everything is same, only instead of polyarthritis it is basically monoarthritis or polyarthritis, or it can be polyarthralgia. In the minor criteria in the next slide, as you can see, we have fever in a child, we can see elevated ESR, we can have elevated CRP हमें देखने को मिल सकता है। आरुषि नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पे शो हो जाएगा। So yes, so we have polyarthralgia for low risk population and monoarthralgia for moderate to high risk population. Fever देखने को मिल सकता है बच्चों में, low risk population में it is more than equal to 38.5 degrees Celsius, and in moderate to high risk population में again it is the same sort of measurements. ESR is more than 16 low risk population, however in moderate to high risk population it's usually more than 30, and CRPB it is always more than 3.0 mg per dl. एंड ECG में एज आई टोल्ड यू प्रोलॉन्ग PR इंटरवल देखने को मिलता है।
प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल का बेसिक रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको एश ऑफ बॉडीज के बारे में बताया था, दैट वाज द मेन रीजन आई टोल्ड यू अबाउट एश ऑफ बॉडीज. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस जब हार्ट टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन हो रही है, थिकनिंग हो रही है, तो अगर आप देखोगे हमारी जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है हार्ट में, तो फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव एन एसए नोट, हेयर वी हैव एन एवी नोट. तो एसए नोट से एवी नोट में जब इम्पल्स जा रहा है, आइडियली इट शुड गो इन अ स्ट्रेट लाइन क्विकली, but due to the presence of ash of bodies in the heart tissues muscles, what is happening here, वो एक तरह से वो जो ash वो ब्रेक करती, तो इम्पल्स रुक रुक के जाती है, धीरे धीरे जाती है, इसलिए पीआर इंटरवल क्या होता है, लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है. दैट इज द मेन रीजन पीआर इंटरवल इज यूजुअली सीन इन दिस केस एज अ प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल. क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड. नाउ नेक्स्ट हियर कम्स द यू कैन सी द मैनेजमेंट पार्ट. कैसे हम इस डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, हम क्या क्या चीजें ऐसे कर सकते हैं जिससे हम बच्चे की कंडीशन मैनेज कर पाए. वन इंपॉर्टेंट थिंग, बेड रेस्ट, डाइट एंड मेडिकेशंस. बेड रेस्ट में क्या है, अगर कोई कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है तो हम बच्चे की मोबिलाइजेशन कुछ महीनों बाद करेंगे. वी विल टेक अ फ्यू मंथ्स टू मोबिलाइज द चाइल्ड. लेकिन अगर कार्डिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बच्चे को हम विद इन अ फ्यू वीक्स भी मोबिलाइज करके उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और बेड रेस्ट कुछ समय के लिए हम रखते हैं. डाइट में यूजुअली वी प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट. हाउएवर अगर हमें लग रहा है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर का सस्पेक्टेड है, देन वी नीड टू रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक. अदरवाइज कोई ऐसे डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है. मेडिकेशन पे मल्टीपल मेडिकेशंस आर देयर विच यूजुअली वी गिव इन ऑर्डर टू मैनेज द कंडीशन. बेसिकली हम देते हैं पेनिसिलिन. ठीक है, तो ये बेंजाथिन पेनिसिलिन जो है वो बेसिकली यहाँ पर दी जाती है आपके इस पर्टिकुलर कंडीशन में. And apart from that, steroids are also given in this particular condition to manage. तो basically वो suppressive therapy का काम करती है steroids. तो apart from benzathine penicillin हम steroids देते हैं. इसकी specific dosages होती हैं. I won't be able to write down here. मैं vocally बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं अभी लिख नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ. इसके अलावा व्हाट ऑल वी गिव, एस्पिरिन कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन एंड स्टीरॉइड्स एंड पेनिसिलिन पेनिसिलिन. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. अगर बच्चा एलर्जिक टू पेनिसिलिन है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव है दैट इज एरिथ्रोमाइसिन. सो एरिथ्रोमाइसिन हम दे सकते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में. इसके अलावा जो नर्सिंग मैनेजमेंट का पार्ट आता है, नेक्स्ट स्लाइड, वहां पर हम फोकस करते हैं कि कोरिया जब बच्चे को हो रहा है, जब सिडेनहैम्स कोरिया के लक्षण दिख रहे हैं, तब हमें बच्चे को कैसे मैनेज करना है. तो पहली चीज की पेरेंट्स को रीअश्योरेंस देनी है कि ये सेल्फ लिमिटिक कंडीशन है, थोड़ा समय में अपने आप ठीक हो जाएगी. दूसरा, उस समय बच्चे को रेस्ट प्रोवाइड करना है, क्वाइट शांत रूम में बच्चे को रखना है. एंड इफ प्रिस्क्राइब्ड और रिक्वायर्ड तो हम हेलोपेरिडोल, यू कैन से डायजापाम एंड कार्बामाजेपिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर प्रिस्क्राइब्ड है बच्चे की कंडीशन के हिसाब से. तो so all these are conditions are basically taken care of for the management of rheumatic fever. इसके अलावा प्रिवेंशन पार्ट भी आता है. प्रिवेंशन में एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब आप डिजीज को होने ही मत दो. इस तरह से ध्यान रखो कि स्ट्रेप थ्रोट समय पे ट्रीट हो जाए. अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे, देयर आर चांसेस कि वो फर्दर रूमेटिक फीवर में डेवलप हो जाए. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम प्रिवेंशन में हम करते हैं सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस. उसमें प्रोफाइलैक्टिव हम पहले से ही बहुत जो भी सस्पेक्टेड हमारी पॉपुलेशन है उनमें हम पेनिसिलिन की डोसेजेस देते हैं एज पार्ट ऑफ प्रिवेंशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट are part of management of rheumatic fever. So if anybody is having any question, any doubt, you can ask me. I can understand the session was not that much interactive because I couldn't write anything, but so far I have tried to tell you what exactly is rheumatic fever in brief. And इसके बीच में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, if you want to know something about rheumatic fever, any doubt you have, please feel free to ask your questions. Yes, please. So, who all part do we have here? So, we have Miss Anve. Okay. So, we have Aarti, Vijaya, Divyanshu, Girija, Motsi, Palak, Shweta, Sneha, Somi, and Tanzila and Yogesh. तो इतने सारे बहुत सारे participants हमारे पास में. If you have any question, so please ask your question. कुछ पूछो बेटा. हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी जाननी है हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कैसे पढ़ें, लाइक फॉर एन एग्जांपल फॉर रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया वी हैव अ सर्टेन निमोनिक जिसमें हम उसको जोन्स निमोनिक, देन वी हैव क्लेपाल निमोनिक. तो मैं अभी यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी बिना लिखे. तो वी डू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ निमोनिक्स व्हिच वी यूज टू रिमेंबर द रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया. तो ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, यू हैव एनी जनरल क्वेश्चन अबाउट द competitive examination, feel free to ask your question. Yes, we do have one question here.
Okay, so how to start NORCET preparation from 5th semester? Very good question, अफजल. अफजल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका बेटा. देखो, नॉर्सेट की बहुत सिंपल सी बात है कि चाहे नॉर्सेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पर आपका जो सिलेबस है, द सिलेबस एंटायरली व्हाट यू हैव, दैट सिलेबस इज बेसिकली अबाउट जो आप यूजी में पढ़ते हो. बस आप यूनिवर्सिटी टॉपर है आप, तो हम आपसे पूछना चाहते थे कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग र्यूमेटिक फीवर आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया और एनएनएल 1 ने हाउ इट हेल्प यू? यस मैम, एज रिमेटिक फीवर एक कार्डियोलॉजी जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, यूजी नॉर्स यूजी के पर्सपेक्टिव के भी और नॉर्सेट के पर्सपेक्टिव से भी. तो आई हाईलाइटेड एंड देन आई रीड इट अगेन सो दैट आई डोंट फॉरगेट इट अनदर टाइम. नेक्स्ट वाज स्पेस्ड रेपिटेशन. इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं मैम, उसको स्पेस्ड रेपिटेशन की बहुत जरूरत होती है. ऐसा तो नहीं होता कि हम एक टाइम पढ़ेंगे तो एक टाइम तक हमें सारा याद रहेगा. तो उसकी वजह से स्पेस रेपिटेशन जो काफी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करती है, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम्स लिखते हैं तो उस टाइम हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम बैठ के सोचें अब क्या लिखना है आगे. वी नीड टू हैव अ क्विक मेमोरी अबाउट दैट टॉपिक. सो स्पेस रेपिटेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इजी था मेरे लिए. इजी से माइंड में आ जाता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है हमने. नेक्स्ट वाज द फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स. जितना कोई भी टॉपिक आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट्स की हेल्प से रिमेम्बर करते हैं, वो उतना ज्यादा मेमोरी में टिक के बैठता है. वी यूज टू हैव निमोनिक्स, एज चित्रा मैम ने कहा कि हमारे पास सर्टेन निमोनिक्स हैं जोन्स क्राइटेरिया को याद करने के लिए. तो वो चीज बहुत हेल्प करती है, क्योंकि सभी चीजें हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑल द टाइम याद नहीं रहती. फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और निमोनिक्स, स्पेशली जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, नर्सिंग मैनेजमेंट होती है, या फिर जो कंबाइंड मैनेजमेंट होती है, अगर हम इन्हें फ्लो चार्ट्स में राइट करके या निमोनिक्स के बेस पर याद करें तो वो बहुत इजी हो जाता है. नेक्स्ट वॉज स्ट्रेटेजाइजिंग योर आंसर. ये टिप मैंने चित्रा मैम से बोरो की थी. She helped me a lot in these things. Strategizing your answer helps a lot. It means like you have a introduction for your answer, then you have the body in which you explain everything, and then at the end you have a conclusion. Make a pattern of a topic like rheumatic fever का topic है. So उन्होंने in general examination में पूछ लिया explain या define rheumatic fever, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट. तो मैं इसका आंसर ऐसे स्ट्रेटेजाइज करती थी कि अगर उन्होंने डिफाइन कहा तो उसकी डेफिनेशन, 1 or 2 definitions दैट वी कैन राइट इन द एग्जामिनेशन. उसके बाद मेन पॉइंट ये था कि मैम वी नीड टू आंसर ओनली द थिंग दैट दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन. इधर उधर की कहानियां बनाने की वजह से हम मार्क्स लूज करते हैं. और ये स्ट्रैटेजीज मैंने चित्रा मैम ने मुझे बताई थी. तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हाईलाइटिंग, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मिल जाते हैं. आप एग्जामिनर को एक स्ट्रेट ऑफ आंसर मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अगर मुझे पैथोफिजियोलॉजी पूछ ली रिमेटिक हार्ट की, रिमेटिक फीवर की, तो मैं उसको एक फ्लो चार्ट में डिफाइन कर देती थी. उससे पता चल जाता था कि इस स्टूडेंट को आता है. नर्सिंग मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास पॉइंटर्स होने चाहिए मेन. तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उन चीजों में. लाइक इफ आई हैव nursing management to write about the rheumatic heart fever or rheumatic fever or rheumatic heart disease, I will strategize my points. मैं points में divide कर लेती थी headings. For example, अगर मेरे पास patient आता है rheumatic fever का, first of all we need to do the assessment. That's the main point of doing all the things. We have investigations. असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन के बेस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं. डायग्नोसिस के बेस के ऊपर हम हमारा कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं. सो ये चीजें काफी हेल्प करती हैं on writing your answer note to note. And then we have the further points like infection control, continuous monitoring, patient and family education, long term follow up, और जो भी हम ट्रीटमेंट में डिफरेंट मेडिसिन यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें जो है, ये 4 मेथड्स थे जो मेरी हेल्प करते थे. और ऐसा है, हमारे एज सेमेस्टर सिस्टम हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने अपडेट किया था हमारा पैटर्न. सो वी आल्सो यूज टू हैव एमसीक्यूज, एंड इन दोज एमसीक्यूज वी यूज टू हैव अ रियल डिफिकल्टी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टॉपिक से, कौन सी ब्रांच से वो डाल सकते हैं एमसीक्यू. सो हमें 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे. फर्स्ट वॉज कॉन्सेप्ट क्लियरिंग. एक टॉपिक के रिलेटेड
कोई भी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए. यू नीड टू हैव बुलेटिन पॉइंट नोट्स. देन ऑप्शन रूल आउट करना बहुत इजी होता है अगर हम उसे स्ट्रैटेजी के साथ यूज करें. जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में, उस चीज से अगर हम रिलेट करें तो हम जो ऑप्शंस गलत हैं वो बहुत ही इजी तरीके से रूल आउट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज द थिंग, हाईलाइटिंग. जो मेन पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन पॉइंट्स हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रेपिटेटिवली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो तो मस्ट है मैम. अगर एक पैटर्न हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रैटेजाइज योर आंसर्स, वो एक स्ट्रैटेजी हम एक ही नहीं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं. एंड दैट यूज टू हेल्प मी अ लॉट इन दैट. थैंक यू सो मच पलक. आई सी आपने बहुत सारे हमें पॉइंट्स दिए हैं एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो थैंक यू सो मच फॉर लेइंग ऑल दोज पॉइंट्स. एंड विद दिस आई थिंक विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन which is our plan video. Let me just share my screen with all of you. Okay, so I will be playing a video of our plan. Now that we have heard from our speakers, I want you all to shift your focus to our next segment, जहां आपको यूनिवर्सिटी स्टडीज को प्लान करने का क्लियर रोड मैप मिलेगा. जैसे कि अभी मिस पलकप्रीत ने अभी सब कुछ मेंशन किया. अभी एक छोटी सी टिप, इस वीडियो के साथ ध्यान से देखना, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यस, यहीं से आप जीत सकते हैं कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स. सो बी रेडी. हेलो मेरे नर्सिंग के चैंपियंस, आज मैं अंकिता आई हूँ आपके सामने हमारे एनएनएल के बिहाफ पे, क्योंकि एनएनएल आपके लिए लॉन्च कर रहा है एक प्लान, यूजी एडवांस प्लान, जो कि है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट्स 3rd ईयर एंड 4th ईयर के लिए. इस प्लान में आपको मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फाउंडेशन, यानी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नॉसेट की बेहतर तैयारी, पुख्ता तैयारी के लिए आपको मिलता है एक बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन. और आपको मिलेगा यूजी एकेडमिक सपोर्ट, प्लस आपको मिलेगी क्लिनिकल बेस्ड लर्निंग. तो आइए जानते हैं कि यूजी एडवांस आपको किस तरह से. अब अगर बात करें कि ये प्लान जो है वो कैसे आपकी हेल्प कर रहा है, ये प्लान जो है 80% फोकस करता है आपको फ्यूचर रेडी करने के लिए, 80% फोकस करता है नॉर्सेट के लिए रेडी करने के लिए. एक ऐसा एग्जाम जो आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है. तो नॉर्सेट के लिए हम आपको दे रहे हैं 500+ आवर्स के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स, 20,000+ क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्राइक क्यूबी एंड टेस्ट सीरीज, जो कि हमारा एक अलग प्लान है, लेकिन हम इसका एक्सेस भी आपको देते हैं ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी को, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें. फास्ट ट्रैक रिवीजन फॉर हाई हील टॉपिक्स, जो कि टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनकी आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन भी कराई जाएगी. टारगेट हाई 8th एडिशन के पीक्यूडी सेशंस, यानी कि जो हमारी नई बुक है टारगेट हाई 8th एडिशन, उसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशंस के सेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे. मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 1, 2 एंड 3, ये बुक्स का सेट है जो कि आपको हेल्प करता है आपके नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए. और आपको मिलता है स्पेशल गाइडेंस, मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक, एमबीएम सेशंस बाय एम्स टॉपर्स, जो कि आपकी हेल्प करेंगे ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज प्लान करने में जो आपकी तैयारी और आपकी जर्नी को स्मूथ बनाएंगे. अब हम बात करें कि ये प्लान आपके यूजी में कैसे हेल्प करेगा. अब नर्सिंग मतलब क्लिनिकल्स, मतलब प्रैक्टिकल्स. तो प्रैक्टिकल्स को समझने के लिए, उन्हें सीखने के लिए हम आपको देते हैं क्लासरूम टू क्लिनिकल सेशंस, यानी कि हम आपकी प्रैक्टिकल की भी तैयारी इस प्लान में आपको करवाएंगे. लाइव डाउट सेशंस बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, यानी कि हम आपको आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करने के लिए लाइव डाउट सेशंस करवाएंगे. टीएच डिकोड 3rd एंड 4th ईयर, टीएच डिकोड बुक्स जो है वो 3rd एंड 4th ईयर के लिए आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको मिलेगा आपका लर्निंग मटेरियल, प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, ताकि आप अपने आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी भी बेहतर कर पाए और उसमें भी एज अ टॉपर इमर्ज हो. आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो अब तक यूनिवर्सिटी
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, उन क्वेश्चंस का एक्सेस आपको मिलता है ताकि आप क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए बेहतर तरीके से अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट कर पाए और अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख पाए, और अगर बेहतर तरीके से लिखेंगे तो बेहतर मार्क्स पाएंगे। तो इसलिए हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। स्पेशल MBM सेशंस बाय एम्स टॉपर्स। वाइवा वोस, सबसे ज्यादा डरते हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स वाइवा से, तो यहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे आपके वाइवा की तैयारी में भी। तो इसके लिए आपकी एक और प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, और हम देते हैं आपको 480+ सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्सरसाइजेस जिनके थ्रू आप अपनी UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये जो प्लान है वो फोकस करता है 3rd ईयर और 4th ईयर के सब्जेक्ट्स पे। अब जो 3rd ईयर और 4th ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम 1.5 ईयर पढ़ते हैं और 6 मंथ की इंटर्नशिप करते हैं। तो 1.5 ईयर में सेमेस्टर 5, 6 और 7 के जो सब्जेक्ट्स हैं हम वो कवर करेंगे। अब UG एडवांस में हम आपको दे रहे हैं क्लासेस, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में हम आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, मास्टरमाइंड्स के लेक्चर देंगे 500+ आवर्स के, जो कि कवर करते हैं आपके 3rd एंड 4th ईयर के सिलेबस को। 3rd एंड 4th ईयर के सिलेबस में जिसमें आते हैं मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, एक्सेस टू स्ट्राइक एंड आर टेस्ट सीरीज प्लान। तो आप उसमें अपनी जो ग्रोथ है, अपना जो प्रोग्रेस है, उसको इजीली असेस कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको देते हैं 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस, और साथ में हम आपको देंगे 4 सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट, 12 मिनी टेस्ट एंड 4 इमेज बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट। साथ ही साथ हम आपको देंगे 480+ सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस, जो कि आपकी UG की तैयारी में आपकी बहुत ही अच्छी तरह हेल्प करने वाली है, ताकि आप UG में भी बहुत बढ़िया मार्क्स ले आएं, और जब यहाँ से आप BSc करके निकले, अपने कॉलेज से BSc करके निकले, तो आप बढ़िया से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक्सेल कर पाएं। और 30 प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी पेपर्स आपको दिए जाते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस में आपको जो भी आपके 3rd एंड 4th ईयर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके MCQs प्लस टेस्ट दिए जाएंगे, प्लस एक एडिशनल फीचर जो कि है कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो असेसमेंट टेस्ट। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, जब आप उसके क्वेश्चन असेसमेंट कॉर्नर में जाओगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज को असेस कर सको कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कितनी नॉलेज गेन हुई है। नॉर्सेट के लिए आपको अपनी थ्योरी पढ़नी है, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और अगर लास्ट मिनट रिवीजन भी करनी है तो मास्टर स्ट्रोक बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए कि आप नॉर्सेट की तैयारी इससे कर सकते हो। और अगर आप अपने UG की तैयारी करना चाहते हो तो टारगेट हाइड नेक्स्ट नर्सिंग डिकोड बुक जो 3rd एंड 4th ईयर के लिए आपको दी जाएगी, जिससे आप अपने अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। प्लस हम आपको दे रहे हैं 350+ ई नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। मतलब आप बढ़िया से जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी तैयारी कर पाओगे इन ई नोट्स के थ्रू। प्लस हम आपको देंगे 1500+ हैंड रिटन ई नोट्स बाय आवर मास्टरमाइंड एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो आपके सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल रिवीजन की, तो हम आपको देंगे फास्ट ट्रैक रिकॉर्डेड सेशंस और टारगेट हाई 8th एडिशन के PQD सेशंस, जो कि लाइव आपके लिए लाए जाएंगे। अगर सबसे बड़ी बात करें तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्ले करता है बहुत ही बड़ा रोल, क्योंकि जब हम अपने अंडर ग्रेजुएट ईयर्स में होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता
कि हमें आगे क्या करना चाहिए, या हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, या हमें क्या चीज़ किस तरह से करनी चाहिए ताकि हम अपने लिए बेटर रिजल्ट्स जनरेट कर सकें। तो सबसे पहले जो NNL है वो अपने प्लान्स में हर बच्चे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग देता है, एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देता है ताकि वो अपने लिए एक फाउंडेशन क्रिएट कर सके। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है आपको NNL के थ्रू। एक्सक्लूसिव ओरिएंटेशन सेशन, जब आप एक प्लान को ज्वाइन करेंगे, UG एडवांस को ज्वाइन करेंगे, तो आपको मिलेगा एक ओरिएंटेशन सेशन कि किस तरह से आपको इस प्लान को एक्सेस करना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से अपनी ग्रोथ को मॉनिटर करना है, किस तरह से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। फिर अगर हम बात करें तो आपको क्लासरूम टू क्लिनिकल सेशंस की तैयारी करने के लिए बहुत ही बेहतर वीडियोस मिलेंगे और लाइव सेशंस मिलेंगे, इंटरैक्टिव सेशंस मिलेंगे आपको टॉपर्स के साथ, जो आपको टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, प्लान्स शेयर करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके स्ट्रेस रिडक्शन में आपकी हेल्प करेंगे और आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। प्लस हम देंगे आपको लाइव टेस्ट जिसमें आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। और हम NNL लाइव पॉडकास्ट भी देते हैं ताकि कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या हम चाहते हैं कि हम ऑन द गो कोई चीज़ सुने और हम पढ़ें, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं NNL लाइव का FM पॉडकास्ट। क्लासरूम टू क्लिनिकल सेशंस में हम देते हैं आपको NNL VSL पैक्स में से वीडियोस एंड लाइव सेशंस क्लासरूम टू क्लिनिकल, जिससे आप अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएं। अपने प्रैक्टिकल्स में आप एक एज अ प्रोफेशनल इमर्ज हो, क्योंकि आप क्लिनिकली बेटर बनोगे तभी तो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओगे, एक बेटर प्रोफेशनल बन पाओगे। NNL के पास है एक सेंट्रल टेस्ट परफॉर्मेंस एंड फॉलोअप डिपार्टमेंट, जो कि ये इंश्योर करता है कि हमारा जो हर स्टूडेंट है, जो भी टेस्ट वो दे रहा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है। टाइम टू टाइम NNL आपसे कनेक्ट करता रहेगा, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट करता रहेगा, आपसे बात करता रहेगा कि आपके प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं या फिर आपको किस चीज में हेल्प की रिक्वायरमेंट है। आइए मिलते हैं उन लोगों से में ही अपना 9 सेट क्लियर कर लें। आपको मिलता है स्पेशल मार्गदर्शन बाय आवर वेरी ओन मार्गदर्शक, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं और वो आपको हेल्प करते हैं आपकी स्ट्रैटेजीज को प्लान करने में। तो बताइए अब UG एडवांस किसके लिए बेस्ट है? मेरे को तो इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप सब अब तक ये समझ ही गए होंगे कि क्या आपके लिए प्लान जरूरी है, इम्पोर्टेंट है या यूजफुल है। Of course, useful. Hope you were able to get few glimpses of our video. I know there is some technical issue, so because of which we could not share it completely. But you can always connect to us if you are interested in our UG advanced plan. And आपने होप जैसे कि हमने मेंशन किया है कि NNL 1 सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, बल्कि सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि नॉर्सेट एस्पिरेंट्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हम रेगुलर मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक सेशन कंडक्ट करते हैं, जहां टॉपर्स और एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एग्जाम की स्मार्ट और इफेक्टिव तैयारी कैसे की जाती है। ये कुछ एक्सक्लूसिव सेशन है जो NNL के पेड सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप भी डीपर मेंटरशिप और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये मैं अपनी अगली स्लाइड आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारे कुछ रैंक होल्डर्स हैं नॉसेट 9 के, जहां में हमने 1000+ सिलेक्शंस अभी हमने देखे हैं रिसेंट नॉसेट 9 में, और ये है हमारे ओवर द ईयर ऑफ द रैंक होल्डर्स, जिसमें हमारे 7500+ सिलेक्शंस रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी किसी भी कोर्स में अगर इंटरेस्टेड है, दे कैन ऑलवेज कनेक्ट बैक टू अस। नाउ मूविंग टू अ Q&A राउंड. So I will take few questions from our Q&A box. Chitra ma'am already answer कर रहे थे. I would request ma'am to continue for the question that we had, that how to start NOSET preparation from 5th semester. Over to you, ma'am. Hi, Arushi. Thank you so much. Am I visible right now? Am I visible? See, dear students, that's not how we imagined and we hope to conduct this session. But today, due to a lot of issues, majorly due to connectivity, we could not
adequately contact with you, but definitely आपके जो important questions हैं, let's try to make them more clear. But exactly आप कैसे preparation कर सकते हैं, कब MCQ prepare करना स्टार्ट करना है, और किस तरह कौन सा प्लान बेहतर होगा प्रिपरेशन के लिए, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो अफजल ने पूछा था कि नॉर्सेट प्रिपरेशन 5th सेमेस्टर से कैसे स्टार्ट करें। देखो, जब तक आप थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में रहते रहते आपके पास यू हैव टू सी द एंटायर पिक्चर। आपके पास में नॉर्सेट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 2 साल होगा, मिनिमम 2 years, एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू अ फ्यू मंथ्स ऑल्सो। अगर आपका आर एम नंबर समय पर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया और इफ इट टेक्स टाइम तो आपके पास कुछ और एक्सटेंडेड मंथ्स होंगे नॉर्सेट अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपने 2 साल के ड्यूरेशन को मंथ्स में डिवाइड करना है, अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड में करना है। आपको ये ध्यान देना है कि क्योंकि थर्ड ईयर ऐसा क्रूशियल ईयर है जब मेजर 4 स्पेशलिटीज, इसके लिए पहले बेटा आपको थोड़ी सी ना नॉर्सेट की ओरिएंटेशन होना काफी जरूरी है कि नॉर्सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा हाई वैल्यू और नंबर ऑफ जिनकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आता है। तो हमारे पास में मेन 6 मेजर स्पेशलिटीज या 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से मेजर पेपर नॉर्सेट का आता है। कुछ सब्जेक्ट्स को हमने माइनर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डाला है, जहां पर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो प्रिविलेंस है दैट इज लेस। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, फर्स्ट ईयर में तो वी हैव FON, सेकेंड ईयर में वी हैव MSN और AHN, इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर मिला के वी हैव 4 स्पेशलिटीज, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक, कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ। तो टोटल मिला के इन टोटल 6 सब्जेक्ट्स वी हैव जिन पर मेजर फोकस नॉर्सेट का रहता है ना। बाकी बच्चे छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट जिनमें से बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके नॉर्सेट के एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन को इस तरह स्टार्ट करना है कि थर्ड ईयर में रहते रहते मेरे पास 4 स्पेशलिटीज हैं जो मुझे थर्ड ईयर में रहते रहते पढ़ के खत्म करनी है। इट्स योर मेंटल हेल्थ, ऑप्शन गाइनी, कम्युनिटी एंड पीडियाट्रिक्स। ये 4 मेजर स्पेशलिटीज है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, चारों के चारों नए सब्जेक्ट्स हैं और नॉर्सेट के लिए भी काफी क्रूशियल हैं। तो आपको पहले कोशिश करनी है कि पूरे थर्ड ईयर के अंदर आप इनको खत्म करो। So for an example, if you are a part of Nursing Next Life any plan जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन आपको करा रहा है और यूजी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करा रहा है, तो वहां पर आपको यूजी एस्पेक्ट से तो टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको मेजर फोकस नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की वीडियोस पे देना है। तो वीडियोस में जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिस भी फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। पहले वीडियो देखना है, देन यू नीड टू मेक नोट्स फॉर दैट। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आपको MCQ सॉल्व करने हैं। तो हर टॉपिक का 1 by 1 ये साइकिल रिपीट करते जाना है। इन दिस वे शुरुआत से आप इंश्योर कर रहे हो कि आप नॉर्सेट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोशिश करो कि थर्ड ईयर में रहते रहते आपके थर्ड ईयर के जो मेजर 4 स्पेशलिटीज है वो आप कंप्लीट कर लो। एज सून एज यू start or enter into fourth year, then you talk about AHN, FON, then you start with those subjects, because फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऑलरेडी आप पढ़ कर आ चुके हैं। इट्स नथिंग लाइक आपने पहले नहीं पढ़ा है। लेकिन अब नॉर्सेट की तैयारी से उसको नॉर्सेट की फोकस से कैसे पढ़ना है, तो फोर्थ ईयर में आते आते आप उनको स्टार्ट कीजिए। एंड मीन वाइल बाय द एंड जब आपका फोर्थ ईयर खत्म हो जाएगा, तब तक आपका आई थिंक नॉर्सेट का अटेम्प्ट आ जाता है। तो प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले मुझे वीडियो देखना है, मुझे नोट्स बनाने हैं, देन मुझे MCQ सॉल्व करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो वी डू हैव द एंटायर फैसिलिटी कि आप जहां जो वीडियो देख रहे हो उसी के नोट्स भी बनाओगे, और उसी वीडियो से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड यू हैव एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन आवर क्यू बैंक पूल। तो इस तरह से हम एक सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ रहे हैं। देन ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर यू टू अपनी स्टडी को और बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए स्टडी मटेरियल भी है, जो आपको थियरी भी पढ़ाएगा, रिवीजन भी कराएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देगा। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमें चलना है। तो जितना जो क्वेश्चन अफजल ने बोला था, प्रिपरेशन यही है, सब्जेक्ट वही रहेंगे, टॉपिक्स आपको नॉर्सेट ओरिएंटेड हाई टॉपिक पे फोकस करना है और वहां से आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है। इफ आई टॉक अबाउट विजया, निमोनिक्स की बेटा आपने बात की। देखो निमोनिक्स, बहुत सारे निमोनिक्स हैं। अभी मैं आपको लिख के नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आई डोंट हैव द फैसिलिटी राइट नाउ टू राइट इट डाउन। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास में एक निमोनिक होता है मेजर क्राइटेरिया के लिए, एक निमोनिक है माइनर क्राइटेरिया के लिए। मेजर क्राइटेरिया के लिए वी हैव निमोनिक नेम्ड एज जोन्स, ठीक है। J फॉर इट बिकम्स जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, O से O that is basically heart like shape, it is basically focusing on carditis. Then we have N for nodules and we E for erythema marginatum, S for symptoms chorea। तो ये जोन्स जो एक निमोनिक है, ये हमारा
मेजर क्राइटेरिया के लिए, वैसे ही हमारा माइनर क्राइटेरिया के लिए है क्लेपैल, इसके अलावा सॉरी कैफेपैल, देन इसके अलावा और भी हमारे पास निमोनिक्स है, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ निमोनिक्स। अगर आपको इन केस वैसे भी नहीं पता, इफ यू विल सर्फ ऑन गूगल आल्सो विल गेट द निमोनिक्स। फॉर एग्जांपल वी हैव केसेस फॉर मेजर क्राइटेरियाज एंड वी हैव फ्रैप फॉर माइनर क्राइटेरिया। तो अभी मैं लिख के नहीं आपको बता पाऊंगी। इफ यू विश टू नो अबाउट द निमोनिक्स डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस, बट निमोनिक्स से याद करोगे तो रिटेंशन ज्यादा रहेगी, भूलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। दैट इज द मेन फोकस अबाउट कि निमोनिक क्यों पढ़ना है। ओके, देन विच प्लान इज बेस्ट फॉर नॉर्सेट प्रिपरेशन, इट ऑल ओनली डिपेंड्स बेटा, आप कौन सी ऑडियंस है और आप किस पड़ाव पर हैं। आप यूजी पास आउट कर चुके हैं तो अलग प्लान है, आप यूजी के साथ ही तैयारी कर रहे हैं तो अलग प्लान है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप यूजी में ही है और नॉर्सेट को फोकस कर रहे हैं तो आप यूजी एडवांस प्लान वुड बी बेटर फॉर यू। लेकिन अगर आप ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट दे आर इन द 4th ईयर, अबाउट टू फिनिश द 4th ईयर, देन द प्लान C+ वुड बी बेटर फॉर देम, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड और करंट आर की क्या है, और आपका फिलहाल आप किस लेवल पर, किस स्टेज पर है, उस पर डिपेंड करेगा आपका प्लान कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, एंड देन डेफिनेटली एमसीक्यू प्रिपरेशन बेटा शुरुआत से शुरू करनी है गिरिजा, एंड में आके सोच लेंगे कि नॉर्सेट के कुछ महीने पहले हम एमसीक्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। शुरुआत से, जब से हम वीडियो देख के टॉपिक पढ़ रहे हैं या कहीं से भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, वहीं से शुरुआत करनी है, एक 5-5 10-10 एमसीक्यू एवरीडे सॉल्व करने की। एमसीक्यू क्यों सॉल्व कराए जाते हैं, ताकि आपको पैटर्न पता चल सके कि अगर एमसीक्यू आता है तो उसको क्रैक कैसे करना है, उसको डिकोड कैसे करना है, सही आंसर कैसे पता लगाना है। कई बार हमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी नॉलेज होती है, स्टिल इतना फंबल हो जाता है, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में, डिस्ट्रैक्टर्स में, हम आता हुआ आंसर भी गलत कर देते हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैसे हटेगी, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न एंड द मोर एफिशिएंट यू विल बी। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरुआत से ही करनी है, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, यू विल हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एवरी डे। अब 5 करो, 10 करो, मिनिमम छोटा छोटा स्टेप्स लेके चलोगे, आगे जाके यही आपके 100, 200, 300, 500 तक पहुंच जाएगा प्रैक्टिस। तो एंटायरली डिपेंड्स आप प्रिपरेशन अपनी कब स्टार्ट कर रहे हैं। स्नेहा, Ma'am, नॉर्सेट एग्जाम के लिए ma'am, अंडर so ग्रेजुएट sorry to कोर्सेज। interrupt you. यस आरुषि। Ma'am, since we are just moving forward with the time, so I think Okay. the rest questions will be happy to take, like they can send this to us over email or other details, Surely. and then we'll be happy to connect with them with the other webinar as well. So we can take the questions moving forward. Sure. So No thank worries. you so much for answering all the questions. Thank you I so mean, much. Thank you. and then with this, as we reach to the final segment, let's talk about something really exciting. आप सबके पास एक स्पेशल रिवॉर्ड जीतने का मौका है। इस क्यूआर कोड को आप प्लीज स्कैन कीजिए और जो क्विज है उसमें उसके अटेम्प्ट कीजिए, जो कि अभी जो हमने वीडियो देखा था उसी पे बेस्ड है। क्विज कंप्लीट करने वाले पार्टिसिपेंट्स में से जो टॉप 10 सारे आंसर सही देंगे, उन्हें एक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा मास्टर स्ट्रोक बुक वॉल्यूम 3 का एनएनएल की तरफ से एज अ स्पेशल रिवॉर्ड। सो स्टार्ट स्कैनिंग। आई विल जस्ट गिव यू अ मिनट। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेंड कीजिए। But please remember the top 10 winners will be getting the Masterstroke Volume 3 book. So with this, we come towards the conclusion of our today's session. A big thank you to all our speakers for sharing such valuable insights, and bigger thank you to every participant who stayed with us, learned with us, and made this session truly meaningful. उड़ान का एम बिल्कुल सिंपल है, स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, इंस्पायर करना और उनकी लर्निंग जर्नी को विंग्स देना। आप सबका एंथुजियाज्म ही इस इनिशिएटिव को स्पेशल बनाता है। वी होप आज का जो सेशन था वो आपकी यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन और नॉर्सेट जर्नी दोनों में क्लैरिटी लेकर आया। Please download the NNL One app, which is available on the Play Store. You can also scan the QR code that is here and follow us on the social media platforms. Keep learning, keep growing, and keep flying high with Udan. By the student, for the student. Thank you, everyone, and have a wonderful day. Thank you.